Hello dear students. Now in today's lecture we will continue our problems based on GP. अभी तक जो जीपी में आप काफ़ी कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए वही क्वेश्चंस आपको अब कंटिन्यू करने हैं. द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन कमिंग अप इज find four numbers in GP. Find four numbers in GP in which third term is greater than first. Third term is greater than first by 9 and second term greater than fourth by 18. देखो चार नंबर से ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में and what is given? Four numbers are GP in which third term is greater than first by 9. तो third term and first term तो ये ऐसी GP है AR square AR cube. These are the four term in GP. Now the third term is greater than first term. So AR square minus A दोनों में डिफरेंस है 9. दिस इज इक्वेशन नंबर 1. ये इक्वेशन नंबर 1 है आपका. नाउ सेकेंड टर्म इज ग्रेटर देन फोर्थ टर्म. तो सेकेंड टर्म माइनस फोर्थ टर्म, सेकेंड टर्म ग्रेटर देन फोर्थ टर्म बाय 18. ये नंबर 2 है आपका. अब देखो ये दो इक्वेशंस है, अब इनको सॉल्व करना है. सो फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन a कैन बी टेकन कॉमन, सो r स्क्वायर माइनस 1 रिमेनिंग, एंड फ्रॉम सेकेंड ar कैन बी टेकन कॉमन, सो 1 माइनस r स्क्वायर रिमेनिंग 18. अब ये दोनों डिवाइड करेंगे आप. ये कंडीशन में डिवाइड करेंगे तो क्या आता है बोलो. ar इन ब्रैकेट 1 माइनस r स्क्वायर divided by a r square minus 1 equal to 18 by 9. That is the simple division. Divide these two terms. Now here a से a cancel होगा. 1 minus r square and r square minus 1 are two opposite terms. ये दो opposite terms है तो ये cancel करेंगे आप तो minus r equal to आता है 2. Therefore r equals to minus 2. R equals to minus 2. That is the value of R. देखो GP में दो इंपॉर्टेंट कैरेक्टर होते हैं. वन इज द फर्स्ट टर्म एंड अदर इज कॉमन रेशियो. वी गॉट दैट कॉमन रेशियो R इक्वल टू माइनस 2. नाउ पुट हियर, पुट इन 1. ये 1 में पुट अप करेंगे आप तो क्या मिलता है बोलो. A R मीन्स माइनस 2 स्क्वेयर माइनस A इक्वल टू 9. माइनस 2 स्क्वेयर इज 4. सो 4A माइनस A 9. So 3a equal to 9. So correct value of a is 3. तो a 3 है तो अभी आप GP लिखना बिल्कुल आसान है. So first term is 3. सेकेंड टर्म ऑब्टेन करने के लिए माइनस 2 से मल्टीप्लाई करो माइनस 6. थर्ड टर्म के लिए माइनस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 12 एंड देन माइनस 24. ये चार टर्म्स होंगे ऑफ दैट रिक्वायर्ड GP. आर यू गेटिंग दिस? ये बिल्कुल आसान क्वेश्चन था. स्ट्रेट फॉरवर्ड इंफॉर्मेशन थी आपके पास, उसे ही आपने सॉल्व किया. दैट इज द वे टू सॉल्व दैट क्वेश्चन. नाउ विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये जीपी पर ही बेस है. राइट डाउन द न्यू क्वेश्चन. In next question,
if pth, qth, rth term of a GP are ABC respectively, then show that a raised to power q minus r, b raised to power r minus p, c raised to power p minus q, that is equals to 1. ये तरीका है सॉल्व करने का. अब देख लो कैसे सॉल्व कर सकते हैं आप क्वेश्चन को. देखो pth टर्म क्या है बोलो. pth term is given by a r raised to power p minus 1. pth term is given by a r raised to power p minus 1. ये pth term and that is given as a. qth term, what about qth term? qth term is given by a r raised to power q minus 1, that is given b, and the rth term is given by, बघा मी नोटेशन्स फक्त बदलून घेतले कारण या दोन r मध्ये कन्फ्युजन नको व्हायला. That's why capital R has been used here. Now consider this left hand side. अब लेफ्ट हैंड साइड कंसिडर करेंगे आप. a raised to power q minus r, b raised to power r minus p, c raised to power p minus q. What is correct value of a here? a की वैल्यू क्या है बोलो. a r raised to power p minus 1 raised to power q minus r. What is value of b? a r q minus 1 raised to power r minus p. आता इथे लिहितोय. And now c is a r raised to power r minus 1 raised to power p minus q. अब देख लो कैसे सॉल्व करना है. नेक्स्ट स्टेप. Now collect the powers of a. Collect the powers of a. What is power of a here? Power of a is q minus r. मल्टिप्लिकेशन मध्ये जर पॉवर असेल तर तो दोन्ही टर्मचा पॉवर असतो. q minus r. What is power of a here? r minus p. And what is power of a here? That is p minus q. This is power of a. Now what about powers of r? Powers of r बताइए. Powers of r है p minus 1 q minus r. Powers of r q minus 1 r minus p. And last one is r raised to power r minus 1 p minus q. These are the power. Now collect the total powers of a. a के पावर अगर आप मल्टीप्लीकेशन में बेस अगर सेम है तो पावर गेट्स एडेड. अब ये पावर ऐड करेंगे तो माइनस आर प्लस आर कैंसिल होगा. माइनस पी प्लस क्यू माइनस क्यू कैंसिल होगा. तो a का पावर बनता है 0. And whenever power of any term is 0, that is exactly equal to 1. Now similarly, what is power of r? ये मल्टीप्लाई करो. पी क्यू माइनस पी आर माइनस क्यू प्लस आर. ये ब्रैकेट्स मल्टीप्लाई किए. अब मल्टीप्लीकेशन में पावर की एडिशन होती है तो प्लस क्यू आर माइनस पी क्यू माइनस आर प्लस पी. एंड द लास्ट वन इज पी आर माइनस क्यू आर माइनस पी प्लस क्यू. नाउ a raised to power 0 and similarly r. ये प्लस पी क्यू यहां माइनस पी क्यू है. असे सगळे पावर कॅन्सल होतात बघा. माइनस पी आर विल गेट कॅन्सल टू प्लस पी आर. तो आर का भी पावर 0. पावर 0 मीन्स आंसर इज 1. दैट्स व्हाई वी कैन इजीली शो दिस इक्वल्स टू 1. एक बार देखो कैसे सॉल्व किया. pth term of AP is a, that is given in the problem. लक्ष्य द्या. pth term of a GP A. तो pth टर्म a है. pth टर्म कैसे ऑब्टेन होती है? nth टर्म का क्या फॉर्मूला है? ar raised to power n minus 1. यहां p minus 1 that is equals to a. ar raised to power q minus 1 that is b. Similarly this.
अब आपको ये प्रूव करना है इक्वेशन. अब LHS is a raised to power q minus r. Started with LHS. Now put the value of a की ये वैल्यू आप यहां पुट अप करेंगे, a r raised to p minus 1 q minus 1 like this. ये वैल्यूज मैंने पुट अप की है. Now I am considering two term. One is base a and other जिसमें बेस r है. तो बेस a उसमें पावर क्या है देखो, q माइनस r, हियर r माइनस p एंड हियर p माइनस q. मल्टीप्लीकेशन में पावर ऐड होते हैं तो ये सारे पावर माइनस r प्लस p माइनस q कैंसिल होके 0 आता है. सो a रेस्ट टू पावर 0 जो 1 है. सिमिलरली r का पावर है तो पावर गेट्स मल्टीप्लाइड. तो यहाँ r का पावर p माइनस 1 इंटू q माइनस r दैट कैन बी मल्टीप्लाइड लाइक दिस. Similarly, q minus 1 raised to r minus p can be multiplied. So power of r, every term get cancelled. So we are getting answer power 0 means answer is 1. This is the correct way to solve that question. I will move to the next question. So we are considering problem based on geometric progression. It is the second type of progression. We have already studied arithmetic progression. Now next question is, show that product of the corresponding terms of sequences. Two sequences are given, ar square like that up to ar raised to n minus 1, and second one is given ar square ar raised to n minus 1. फॉर्म जीपी फॉर्म करता है, फॉर्म जीपी. देख लो ठीक से. नाउ वी हैव गिवन टू सीक्वेंसेस हियर. अब वो दो सीक्वेंसेस देखो मल्टीप्लाई करने हैं. शो दैट product of corresponding term is first term must get multiplied with the first term of the second sequence, second term must get multiplied with the second term of second sequence. So product of corresponding terms क्या होगा बोला भैया. Product of corresponding terms, a into a, that is r r square like that, r raised to n minus 1 r raised to n minus 1. Now the observation is, ये डिवाइड करके देखो आप. अगर ये डिवाइड करेंगे आप तो डिवीजन में रेशियो नंबर 1 क्या आता है, r डिवाइडेड बाय ये कैंसिल होगा. सो r इंटू r रेशियो नंबर 1. नाउ रेशियो नंबर 2, r square r. एक a कैंसल, एक r कैंसल, एक r कैंसल, अगेन r. तो रेशियो कांस्टेंट है, रेशियो कांस्टेंट, therefore it's a GP. R into R is the common ratio. R into R is the common ratio. तो सिंपल सी बात है, दो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशंस आपके पास अवेलेबल है. फर्स्ट is also a GP, second one is also a GP. If you multiply the corresponding terms, the new sequence form is also a geometric progression, and the ratio is nothing but, common ratio is nothing but product of the corresponding ratio. पहिल्याचा रेशो समजा आता 2 GP आहे, आता ही आहे समजा 2, 4, 8 अशी एक GP आहे ज्याचा रेशो 2 आहे, आणि दुसरी आहे समजा 1/3, 1/9, 1/27 लाईक दॅट.
यहाँ रेशो 1/3 है, रेशो 1/3। तो अगर आप ये करस्पॉन्डिंग टर्म्स मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ रेशो इज 1/3। तो जो करस्पॉन्डिंग टर्म से जो नई सीक्वेंस फॉर्म होंगी उसका रेशियो होगा 2 into 1/3, दैट इज 2/3 विल बी द एग्जैक्ट रेशियो। सो डू रिमेंबर, ये एक सिंपल क्वेश्चन था। नाउ विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Okay. Insert two numbers between 3 and 81 so that resulting sequence is GP. Resulting sequence is the GP. Look at the question. It's a quite simple question. दो नंबर्स है ऑलरेडी आपके पास, वन इज 3 एंड अदर वन इज 81. दिस इज 3 and this is 81. Now you are inserting two numbers between them, one is G1 and say other is G2. तो जब आप ये दो नंबर्स इंसर्ट करते हैं तो ये प्रोग्रेशन GP है, इट्स अ GP given. Such a inserted numbers are known as geometric means. जेव्हा तुम्ही दोन नंबरशामध्ये काही नंबर इन्सर्ट करता तेव्हा जे नवीन सिक्वेन्स जर जॉमेट्रिक प्रोग्रेशन तयार होत असेल तर जे इन्सर्टेड नंबर, मग ते 2 असतील 3 असतील व्हॉटएव्हर, त्या इन्सर्टेड नंबर्सला जॉमेट्रिक मीन्स म्हणतात. जर इथे इनकेस एपी तयार झाली असती तर हे इन्सर्टेड नंबर हे अरिथमॅटिक मीन असते. म्हणजे यहाँ हा क्वेश्चन असंही विचारला जातो, इंसर्ट टू जॉमेट्रिक मीन बिटवीन 3 and 81. अब देखो ये आपकी फर्स्ट टर्म है दैट इज 3, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ टर्म है आपकी 81. नाउ द फोर्थ टर्म इज गिवन बाय AR क्यूब इज 81 A3. सो व्हाट इज वैल्यू ऑफ R क्यूब? R क्यूब इज 27. सो वैल्यू ऑफ R इज 3. द वैल्यू ऑफ R इज 3. अब R 3 है तो G1 ऑब्टेन करना बिल्कुल सिंपल है. ये नंबर को 3 से मल्टीप्लाई करो आप. 3 into 3 9, G2 9 into 3 दैट इज 27. तो ये इंसर्टेड नंबर है 9 and 27. These two numbers must be inserted. Okay, now we'll move to the next question. Find the value of n. Find n find n if a raised to power n plus 1 b raised to power n plus 1 divided by a raised to power n b raised to power n may be GM. GM is geometric mean of A and B. अब देखो ये ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है. अगर दो नंबर्स A एंड B है तो इनके बीच में एक नंबर ऐसा होता है कि जो तीनों नंबर्स को ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में लेके आता है. त्यांच्यामध्ये असा एक नंबर असतो की जो त्यामुळे ते तिन्ही नंबर जीपी मध्ये येतात. आता बघा जीपी म्हटल्यावर रेशिओ सेम म्हणजे G/A B/G म्हणजे G स्क्वेअर इक्वल टू AB. G स्क्वेअर इक्वल टू AB हे त्याच करेक्ट आन्सर होईल. मग G इज नोन ॲज किंवा G बरोबर अंडर रूट ऑफ AB. अंडर रूट ऑफ AB हा क्वेश्चन जर ऑप्शन मध्ये जर विचारला गेला, समजा एक ऑप्शन आहे 1,
एक ऑप्शन आहे 0, तीसरा ऑप्शन है समझा -हाफ, फोर्थ ऑप्शन है समझो 1/2। तो अगर आप ये ट्राई करेंगे ऑप्शंस तो देखो क्या आता है। 1 ट्राई करेंगे आप तो ये a स्क्वेयर बनेगा, b स्क्वेयर बनेगा, a प्लस बी बनेगा। इससे तो ये नहीं बनेगा √ab, मीन्स दैट इज रॉन्ग। 0 ट्राई करेंगे आप तो भी नहीं बनेगा। -हाफ से क्या आता है देखो, -हाफ + 1 is 1/2। Now I am checking this option. -हाफ + 1 is 1/2, a raised to power -हाफ, b raised to power -हाफ। Now look at this, ये होता है आपका √a, ये √b, ये अपॉन में जाके √a और ये अपॉन में जाके √b। नेगेटिव्ह पावर आहे, नेगेटिव्ह पावर मीन्स पावर -हाफ म्हणजे अपॉन मध्ये जाऊन +हाफ आणि +हाफ म्हणजे रूट। मग आता याला जर सॉल्व केलं, हे √a + √b, ये √b + √a डिवाइडेड बाय √ab, ये कैंसल, तो ये √ab, हा √ab बनतो बरोबर। हा √ab बनलाय म्हणजे तो त्या a आणि b चा जॉमेट्रिक मीन बनलाय, म्हणजे बाय द मेथड ऑफ व्हेरिफिकेशन वी गॉट द करेक्ट आन्सर एज -हाफ। ऑब्जेक्टिव्ह मध्ये असं सोडवायचं आहे। ऑब्जेक्टिव्ह एक्झामचं काय, तुम्हाला तिथे आन्सर फाइंड नसतं करायचं, तिथे आन्सर तुम्हाला आयडेंटिफाय करायचं असतं। आणि मग आयडेंटिफाय करायला तुम्ही एक एक ऑप्शन ट्राय करायचं। मी 1 ट्राय केला, आय एम नॉट गेटिंग द करेक्ट आन्सर, देन आय ट्राइड फॉर 0, देन आय ट्राइड फॉर -हाफ। 4 पैकी मॅक्सिमम 3 अटेम्प्ट तुम्हाला घ्यावे लागतात, तर तुम्हाला ते करेक्ट आन्सर मिळतं त्याचं। ओके।